Today we have advocate Naveen Salim Merchant, who is the advocate at the Supreme Court of Pakistan and has been working as a senior partner at Merchant Law Associates with over 24 years of experience in the practice of law. She has also worked internationally as an ADR expert with global organizations such as International Finance Corporation, and successfully undertook the task of establishing effective dispute resolution systems in the Middle East and North Africa. She has received her Bachelor's of Law and Bachelor's of Art from SM Law College and University of Karachi, and holds a diploma in mediation from York University, Toronto. She is also an accredited mediator from the Centre of Effective Dispute Resolution UK, and currently holds directorship in Otsuka Pakistan Limited and Suneri Bank. She is an independent director over there and a certified director at the Institute of Business Administration, Pakistan. Thank you so much for having us here, and we're very excited to start this discussion. So, मैम अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँ जो कि है कि what are the different ways to resolve a dispute? Well, to resolve disputes there are two methods. One is formal and another one is informal, right? जो formal है, that is litigation and arbitration, and both are bound by rigid rules. The decision is unpredictable. The process is not private, it's public. Confidentiality कोई नहीं होती है और parties का इसमें कोई stake नहीं होता है. So both these processes have now become very time consuming and very tedious also, and very costly as well. Okay. So जैसे आपने formal और informal के साथ introduction दी, if we had to describe what exactly ADR is, which is alternate dispute resolution, तो उसको आप किस तरीके से हमारी public के लिए जो हमें देख रहे हैं उनको describe करना चाहेंगे? Okay, so what happened was like some 45 years ago, in the US they introduced mediation sort of a thing, conciliation, which is informal way of resolving disputes. ये ADR या mediation या conciliation ये सारा कुछ हमेशा से हमारे यहाँ चलता है. मतलब it finds mention in Quran, in Sharia. तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है. What is new is the structured way of conducting these processes through a third party who is neutral. And he has to just facilitate the parties in their communication. उसका काम ये नहीं होता है कि कोई resolve करे वो disputes को. Parties resolve करती है अपने dispute को, तो parties फैसला करती है. That is the beauty of it. So there are many ways in which this can be done. First of all, there is a negotiation. Negotiation takes place between two parties. If their goals are compatible, दोनों की आपस में understanding है, तो सोचेंगे कि चलो बैठ करके कुछ इसका फैसला कर लेते हैं, because we don't want to go into court. ठीक है? Cost बचाना, time बचाना. तो अगर जो इतनी compatibility होती है तो negotiations दो parties के बीच में जहाँ third party involved नहीं होती है, it's direct negotiation between the two parties, तो वो हो सकती है. But normally ये fail हो जाती है. दूसरा एक जो प्रोसेस है दैट इज़ मीडिएशन. मीडिएशन में जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी न्यूट्रल जो है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन पार्टीज़ में और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. ठीक है ना? लेकिन पार्टीज़ के पास इसकी अथॉरिटी होती है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. इसको आप अगर थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहें. देखिए, मीडिएशन का जो प्रोसेस होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है. मीडिएटर उस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है. ठीक है? और इसके अंदर जो है वो पार्टीज़ जो दो सामने बैठी होती है उसमें किस तरह से कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना है वो कर रहे होता है, मीडिएटर कर रहा होता है. उससे क्या होता है कि पार्टीज़ अपना सिर्फ केस ही अंडरस्टैंड नहीं करती, दूसरे का भी केस अंडरस्टैंड करती. तो उनको वो जो उनकी जो रिजिड स्टैंड्स होते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरता है और फिर कहीं म्यूचुअली जो एरिया है, म्यूचुअली कंसेंट का जो एरिया, वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं एंड देन दे आर एबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. और मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगी, बट मीडिएशन का प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा है कि मोस्टली मीडिएशन सक्सेसफुल होती है
और पार्टीज सेटिस्फाई होके जाती बिकॉज पार्टीज ने खुद वो डिसीजन किया होता है। तो पार्टीज वो मीडिएटर एंड में जो है वो सेटलमेंट एग्रीमेंट उनको बना के देता है और उसके पर पार्टीज साइन करती है, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फिर कोर्ट में जाके इसको फर्दर प्रोसीडिंग्स में ना जाए। ठीक है, और वो जो अग्रीमेंट होता है जो पार्टी साइन करती है वो जाके कोर्ट में उसको इन्फोर्स करा सकते हैं? अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो न्यू लॉ हमने इंट्रोड्यूस किया है सीपीसी में 89A को, वी हैव एनहांस द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ 89A, उसके अंदर 89B भी हमने शामिल किया है। देन वी हैव गॉट रूल्स ऑर्डर्स जो ऑर्डर 10 रूल 1A B C D इस तरह से हमने ऐड करके एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। तो उसमें दो तरीके दिए। एक तो जैसे आप मीडिएटर हैं, आपके पास पार्टी आती है कि मुझे आपसे मीडिएशन करवानी है, आपको वो बताएंगे कि दूसरी पार्टी कौन है, तो दूसरी पार्टी को आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। फिर दोनों पार्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी, तो आप वो मीडिएशन का प्रोसेस जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फॉलो करेंगे। ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि रिजिड रूल्स नहीं है कोर्ट की तरह। जैसे अगर पार्टीज़ आपके पास आती कहती है कि हमें आज नहीं करना है, ये 15 दिन के बाद करना है, या यहाँ नहीं वहाँ करना है, अगर सारी पार्टीज़ कंसेंट देती तो दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। हाँ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब पार्टीज़ आपके सामने अगर बैठी है और आप कहें उनको कि आप रिजॉल्व करें, वो कभी भी नहीं करेंगी। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि एक तो कॉन्फिडेंशियल है, और फिर इस प्रोसेस में दो पार्टीज़ को दो अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है। अच्छा। हाँ, और मीडिएटर फिर वो एक कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे में जाता है, दोनों को अच्छी तरह से टाइम देता है, लेकिन इक्वल टाइम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मीडिएटर। मतलब उसको कभी भी थ्रू आउट द प्रोसेस इतना ही अनबायस्ड प्रोसेस है कि कभी भी पार्टी को ये नहीं होता है कि मीडिएटर उनसे मिला हुआ है या उनसे मिला हुआ है, ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट वी डू। सो कॉन्फिडेंशियलिटी है, देयर इज ईज ऑफ एक्सेस, इम्पार्शियलिटी, एंड आपका म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप दोनों पार्टीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं जहाँ पे वो दोनों की बातें सुन रहे हैं। अभी मैं आपको ये कंप्लीट कर दूं कि एक तो आई पार्टीज़ आपके पास डायरेक्टली, ठीक है, आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया, पार्टीज़ ने डिसाइड कर लिया, सेटलमेंट एग्रीमेंट्स इसको साइन हो गया। यू कैन टेक दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, यानी जहाँ पे साउथ में जाता है कि क्या, और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए उस कोर्ट को। वहाँ आप ले जाके कोर्ट एक एप्लीकेशन के साथ, जिसे जे मिसलेस कहते हैं, जुडिशल मिसलेस एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के साथ वो सेटलमेंट एग्रीमेंट आप लगा के और जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हो वो लगा के कोर्ट को कहें कि ये आप इसके ऊपर डिक्री दे दें। That is the enforcement mechanism where the mediations happen outside the court structure, बिल्कुल outside। अभी मैंने एक करवाया था इसी तरह से रेजोल्यूशन। एक IT कंपनी थी और दूसरी ऑयल एंड गैस कंपनी थी। बिग मैटर, दे केम टू मी। एक पार्टी आई थी, फिर मैंने दूसरी पार्टी को जो रिलेक्टेंट थी उसको कन्विंस किया, और फिर हमने ये किया और रिज़ॉल्व हो गया, तो इसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। बट वो उसका रिज़ॉल्व होना ऐसा था कि जो भी लेन देन करना था वो देन एंड देर हो गया, तो पार्टीज़ को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिक्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अब हमने कोर्ट्स को ये ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है कि वो केसेस जो है वो मीडिएटर्स को रेफ़र करें, खुद से करें। इसमें हमने सालिस की लिस्ट भी उनको दी है कि ये इतने सारे थ्रू आउट सिंध जो है हमने ट्रेन किए। आपको शायद पता हो कि लीगल एड सोसाइटी ने 115 सालिस अपॉइंट करवाए थे हाई कोर्ट से, एंड वी ट्रेन देम 5 बैचेस, हमने उनको डिवाइड किया 5 बैचेस में, और हमने इनको 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी। Okay, so now they're trained सालिस, जिसको Exactly. आपके केसेस को कोर्ट रिकग्नाइज भी करती है उनको, और उनको अब कोर्ट्स जो है रेफ़र करेगी केसेस। आई मीन देर आर अदर मीडिएटर्स एज वेल, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं, जैसे IBA में हमने करवाया, बट यहाँ पर चूँकि हम सालिस से डील कर रहे हैं, तो सालिस यानी मीडिएटर, ठीक है ना, और कंसिलिएटर और एन आर्बिट्रेटर, तो वो सारे फुल्ली ट्रेंड एंड फुल्ली केपेबल ऑफ
हैंडलिंग द केसेस उनको। अभी शायद लीगल एड सोसाइटी एक रिफ्रेशर भी कोर्स करवाएगी क्योंकि हाँ जी, तो वो इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन सोसाइटी, क्योंकि मेरा एम यही है कि ये सोसाइटी चेंज हो, ये लिटिगेशन से सोसाइटी ना बने, ये आराम से मीडिएशन में डिस्प्यूट रिजॉल्व करे और घर जाके सुकून से बैठे। तो ये मैम, दिस वाज अ very holistic explanation that you gave about the what are the kind of mediations, और आपने सालिस के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि कहाँ किस लॉ के तहत वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कोर्ट से, अब सैंक्शनड हैं और उनको ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं जिसमें लीगल एड सोसाइटी एंड you were our master trainer in that. So ma'am, like can you give examples of a couple of disputes जिसके अंदर जो डे टू डे हमारे पास सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर पे कॉल्स आती हैं, उन डिस्प्यूट्स में आपके पास मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स होते हैं, तो कोई अगर आप मुझे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरीके से ADR उसके अंदर हो सकता है। तो इफ़ वी गेट अ प्रॉपर्टी का मैटर, सो how can a woman who's, for example, brothers are not letting her have her share of property, तो वो उस चीज़ को किस तरीके से? अच्छा, तो ये इनहेरिटेंस का केस है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस केसेस आर द मोस्ट सूटेबल केसेस फॉर मीडिएशन, क्योंकि जब वो कोर्ट में चले गए तो कोर्ट के अंदर तो ये होता है ना कि डिसीशन जज का होता है एंड इट्स अनप्रिडिक्टेबल एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम देर इज़ अ राइवलरी बिटवीन द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स, ठीक है। अगर आप मीडिएशन में जाते हैं तो एमिकेबल सेटलमेंट होता है, तो हमेशा आपस में उनकी रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट रहती है। तो एक और जो इसका मीडिएशन का जो इम्पोर्टेंट पिलर है दैट इज़ रिलेशनशिप। हाँ, ये आपके जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं उसमें भी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, आपकी इनहेरिटेंस केसेस होते हैं उसमें भी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो दोज आर मोस्ट सूटेबल केसेस फॉर मीडिएशन। क्योंकि मीडिएशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें एंड में हमारी सक्सेस एज मीडिएटर्स जब होती है जब दोनों पार्टीज़ या चारों पार्टीज़ आपस में शेक हैंड करती है, एंड दैट इज़ इंटैक्ट रहती, हाँ, रिजॉल्व जी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई मीन इतना ये ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि इसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं होती है। ठीक है। एंड मैम, कैन यू गिव सम अदर एग्जांपल्स जो कि हम थ्रू ADR सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में लास्ट टाइम जब हम जजेस को ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसके पर CPC अप्लाई नहीं होती, तो इसके अंदर 89A नहीं। लेकिन अगर जजेस को हम ट्रेन कर दें तो मैट्रिमोनियल केसेस में प्री ट्रायल पोस्ट ट्रायल स्टेज के ऊपर वो कर सकते हैं। और बहुत से और एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ जहाँ पर ये मीडिएशन हो सकती है। सपोज़ कोई भी आप कमर्शियल या सिविल डिस्प्यूट ले लें, लैंड आपने बताया, इनहेरिटेंस बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, देयर आर मेनी अदर आपकी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं मोस्टली, जो बड़े बड़े, और जो कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। आपकी सिविल लॉ जितनों को कवर करता है, ऑल कैन बी। एंड देन यू हैव माइनर ऑफेंसेस आल्सो, जो आपका स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस एक्ट है, जिसके तहत आपने सालिस अपॉइंट करवाए कोर्ट से, लीगल एड सोसाइटी ने ही हाई कोर्ट से करवाए उनको, तो वो माइनर ऑफेंसेस भी वो कर सकते हैं। आप सोचे कि कंपाउंडेबल केस है, माइनर ऑफेंस है और कोर्ट में सालों के साल चल रहा है, ठीक है ना, दैट कैन बी रिजॉल्व इन नो टाइम थ्रू मीडिएशन और कंसिलिएशन जो भी। ठीक है। मैम, डू यू थिंक देयर इज एनी अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट जो बंदा मीडिएशन की तरफ जा रहा हो वो अपने दिमाग में उस चीज़ को रखे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ कॉस्ट सेविंग, इट ऑल्सो सेव्स टाइम, वाई शुड वी मूव टूवर्ड्स मीडिएशन? लाइक ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये अहम, मैंने कहा ना कि ये पार्टीज़ के लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपकी रिलेशनशिप इंटैक्ट रहती है, दूसरी आपकी रेपुटेशन। अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो पार्टीज डोंट वांट अदर पीपल टू नो अबाउट देयर डिस्प्यूट, क्योंकि फिर कल को उनको भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वो दूसरे लोग जो होंगे उनके पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो रेपुटेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती है, ठीक है। एंड देन सबसे जो बेहतरीन इसके अंदर चीज़ है कि आज आप मेरे सामने बैठी हैं, दो पार्टीज़ मेरे सामने बैठी है, इफ़ यू डोंट वांट टू
continue with the process, you can walk out. You always have an option. हाँ, you have an option to walk out of the mediation process, जो कि बहुत कम होता है because parties का confidence आना शुरू हो जाते हैं first meeting से ही. अच्छा. ठीक है ना? तो वो without prejudice process है. Parties can go out unless they have signed the settlement agreement. They can they have this option open to leave the process. और ये चीज़ जो है ना उनको confidence देती है कि भाई हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है. तो उसी चीज़ की वजह से वो कहते हैं कि why not try it? जी. तो मैम if both parties are consenting कि हाँ हमने इतना लंबा अरसा कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना और हमने ख़ुद से आपस में बैठ के सॉल्व करना और हम एक न्यूट्रल पार्टी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने मसले डिस्प्यूट को हल करने के लिए, तो if both parties are consenting तो they can both move forward and file an application in front of the judge and request for that mediation. Very good question. Now, if suppose your litigation is pending in the court, ठीक है ना, अब जज के पास एक तो अथॉरिटी ये है कि in the first place when the plaint is presented before the judge, so the law says that the judge has to examine the plaint and decide whether the case is appropriate for sending for mediation. Then, without giving notice to the defendant for filing the written statement, उसकी बजाय वो ये करेगा जज कि उसको एक नोटिस देगा कि why your case should not be sent for mediation. अच्छा. So जज के पास in the first place that authority is with the judge कि वो plaint file हुआ है अभी और कोई process नहीं हुआ है. Before when at the time of admitting the plaint, the judge thinks that this case can be sent for mediation. He will send the notice to the defendant for why it should not be sent for mediation. ये नहीं कहेगा कि आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करें और फिर इसका एक प्रोसेस पूरा दिया हुआ है. इतने शॉर्ट टाइम में हम इसको नहीं कवर कर सकते, बट इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि 15 डेज विदिन 15 डेज ये करना है, विदिन 15 डेज वो करना है. सो इट्स अ होल प्रोसेस. Another one is when if the case is pending before a judge and written statement is also filed or at any stage. Actually मैं तो ये कहूँगी कि before the judgment is passed at any stage, if the parties think that they want to access the mediation process, they can give an application under 89A to the judge. और जज कंसीडर करेगा, जज दूसरी पार्टी से भी पूछेगा और दूसरी पार्टी का भी कंसेंट होना ज़रूरी है इसमें. हाँ, तो ये है प्रोसेस. और आई थिंक कि जब आप मीडिएशन के लिए अगर एक अप्रोप्रिएट स्टेज होती है, उस वक्त अगर ये मीडिएशन हो जाए तो सबसे बेहतर होता है. जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे प्लेंट आ गया, रिटन स्टेटमेंट आ गया, इश्यूज सेटल हो गए. नाउ इश्यूज इज़ वेयर judges can send the case for mediation because issues are highlighted. तो वो भी एक मीडिएशन के लिए कि भाई ये जो आपके इश्यूज हैं ये तो ऐसे हैं कि मीडिएशन में आप कर लें, आपस में तय कर लें. ठीक है. Okay. Thank you so much, ma'am, that you gave us so much time, and this brings us to the conclusion of our discussion.